Hello guys, welcome back to Clad Prep Digital. Today we have got another percentage fundamental video for you. Let's look here and start with the video. Now, in this first question, the length and breadth of a rectangle is increased by 20% and 15% respectively. The area of the rectangle is increased by, मतलब यहाँ पे area में change की बात हो रही है, ठीक है? तो normally if we see these question, we know that area of a rectangle is L into B, right? Everybody knows this. तो अब इनिशियली एरिया क्या होगा, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, वील अज्यूम दैट लेंथ एंड ब्रेथ इनिशियली was both of them was 100. Okay, initially length was also 100 and breadth was also 100. तो area of the rectangle initially क्या हो गया, 100 into 100 which is equal to 10,000. Correct? Understood, clear until here. Now when we in the question now it's given, and when we look here that the length and breadth is increased by 20% and 15%. So if the length was initially 100 and it's increased by 20%, तो कितना हो जाएगा, 100 length new will be 100 plus 20% of 100, correct, which is equal to 120, and similarly breadth new will be 100 plus 15% increase, which is 115, right? Now we see that length is 120 and breadth new is 115. So area new क्या हो जाएगा, 120 into 115, correct, which will be equal to 13800. Right, now we have area new and then we have area old. तो जो हमारा परसेंटेज चेंज का ट्रेडिशनल मेथड है, दैट परसेंटेज चेंज, ओके, चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड an माइनस a0 अपॉन a old, करेक्ट. दिस इज द फॉर्मूला. इससे क्या हो जाएगा, 10,000 माइनस 13,800 विच विल बी इक्वल टू 3,800 अपॉन 10,000 into 100%, correct. So we got that the area increased by 38% and we got our answer, right? Easy, very easy to understand. Now this, we also discussed the similar concept in the previous video, which said that expenditure is equal to price into consumption. When we discussed this concept, we learned that anything which is directly proportional to the to any value, we can directly multiply them. For example, instead of going through all of this, okay, we could have traditionally done what, कि हमने मान लिया कि लेंथ भी 100 है ब्रेड्थ भी 100 है, तो हमने क्या किया, डायरेक्टली 20 and 15% से इंक्रीज कर दिया. मतलब ये सब करने की बजाय हमने क्या किया, सीधा 120 into 115 कर दिया. हमारे पास सीधा 13800 आ गया. हमको पता था कि 100 और 100 10,000 होता है. सीधा 13800 में से 10,000 माइनस कर दिया और वी गॉट 3,800. तो 3,800 अपॉन 10,000 इंटू 100%. तो हमारे पास सिर्फ 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया, राइट. नाउ वील इंस्टेड ऑफ गोइंग इतना लंबा प्रोसीजर, व्हाट we'll try and proceed with the simple calculations. Okay, we'll see this calculation in the next questions and we'll try to solve the next question with the smaller method. Okay, how much has the area of circle increased? Now everybody knows that area of circle is equal to pi r square. ठीक है. अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि रेडियस यहाँ पे इंक्रीज हो गया 25% से, तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा कि हमको स्टेप्स स्किप करने हैं एंड हमको सीधा छोटे मेथड से करना है, तो व्हाट विल डू इज, जब हमको पता है कि रेडियस 100 होगा और अब रेडियस इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि रेडियस न्यू जो है हमारे पास ऑलरेडी 125 है. 125 कैसे आया, 100 प्लस 25% इंक्रीज, दैट इज 125. तो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी आ गया. अब जब हमारे पास रेडियस आ गया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. अब जब पाई आर स्क्वायर होता है तो पुराना एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पाई इंटू 100, करेक्ट. ये हमारा पुराना एरिया हो गया. एंड न्यू एरिया हमारे पास, दिस इज ओल्ड एरिया, एंड न्यू एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 125 इंटू 125, करेक्ट. ये हमारे पास आ गया. अब दिस वी नो वेरी वेल, राइट. व्हेन मल्टीप्लाइंग दिस वील गेट 15625 पाई, राइट. दिस विल बी आवर न्यू एरिया. अब सेम जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आएगा 10,000 पाई, ठीक है.
अब अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, गोइंग बाय आवर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, राइट, गोइंग बाय आवर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5625 अपॉन 10,000 इंटू 100, करेक्ट, यही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 56.25%। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 56.25। अब इसमें भी हमने बहुत टाइम लिया क्योंकि हमने स्टेप्स की। हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे, एरिया, जब हमको चेंज इन एरिया निकालना है तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। तो एरिया अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर से और आर न्यू 125 है, तो 125 इंटू 125 अगर हम डायरेक्टली करते और हमारा आंसर आता 15625, एंड देन व्हेन वी लुक एट आवर ऑप्शंस हियर वी कैन इजीली फाइंड दैट 5625 हमारे ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो वी कुड इजीली मेक आउट दैट ऑप्शन ए इज आवर आंसर। ओके, I hope this is very clear to you. Let's move to another question. Now, as learnt in the last question, we figured out that anything which is directly proportional to the value can be directly multiplied and gotten to the answer by skipping the steps. Okay, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, वॉल्यूम की, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H, मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज थ्री, करेक्ट। तो सेम, अज्यूमिंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों 100, 100 एंड 100 थे, ठीक है, 100, 100, 100 थे, तो वॉल्यूम इनिशियली क्या हो गया हमारे पास 100, 100, 100, तो 100 की 10 की पावर 6, राइट, ये हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम आ गया। अब इंक्रीज बाय 10% ईच, 10% इंक्रीज क्या हो रहा है, तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट कितना हो जाएगा 110, 110 एंड 110, ऑब्वियसली 10% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100 विच इज 10, तो 110, तो ये कितना हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड वॉल्यूम कितना हो गया 110, 110, 110। नाउ वॉल्यूम इज L इंटू B इंटू H, तो 110 इंटू 110 into 110, correct, this will be our new volume which is equal to 1331, right, this is our new volume, right। हमारा old volume हमारे पास ये है ही, बाई परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा के हमारे पास क्या आएगा 331000 अपॉन 10 की पावर 6, मतलब 1 प्लस 6 zeros इंटू 100%, इंटू 100%, करेक्ट। हमारे पास आंसर क्या आया 33.1% इज आवर चेंज, राइट, 33.1% इज आवर चेंज। बस अब ये देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें पूरा बोर्ड भर गया था, कितनी सारी स्टेप्स थी, हमने उन सारी स्टेप्स को एक छोटे से थोड़ी सी कैलकुलेशन बस मेंटली याद करके या दिमाग में ये डाल के कि अगर तीनों वैल्यूज इनिशियली हम 100 अज्यूम करते हैं एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट इज दे मेक इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमको ये याद रहेगा कि हमको सिर्फ L इंटू B इंटू H को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा, राइट, जैसे हमारा आंसर ये आया, जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से परसेंटेज निकालनी है, तो उसका परसेंटेज चेंज डायरेक्टली निकाल के हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, या फिर इफ यू वांट टू स्किप दिस स्टेप आल्सो यू कैन रेफर टू द ऑप्शंस डायरेक्टली। अब जैसे हमारे पास वॉल्यूम न्यू आया था 1331,000, तो हम क्या देखते हैं 331 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है, तो वी डायरेक्टली गॉट आवर आंसर एज ऑप्शन सी। ओके, I hope this was very clear to you, and yeah, so I hope this was very clear to you. I'll see you some other time. Thank you.